आश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिनके राग, भय और क्रोध चले गए हैं और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित है, ऐसा मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त पहले तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। So Krishna is saying a very beautiful thing. He says many people in the past have already attained me, and you can also do it by making that statement that many people have also done it. He's also enticing us. He's also saying that yeah, you can do it. It's not that difficult as it sounds. वो इतना कठिन नहीं है जितना आप मानते हो. But we are smarter, you know. We will say because we don't want to do, we'll say no, it's not my cup of tea. मेरे बस की, मैं इतना पहुंचा नहीं हूँ. I'm not so well advanced, so I cannot do it. Let me excuse myself. It's a way to get out of it, you know. But Krishna says no, it's very easy. Bahavo gnana tapasa puta madbhavamagata. There are many people in the past, even today, they have actually attained me. How? He is showing the way. So in the beginning of 4th chapter, it's a beautiful beginning, you know. As Krishna says, imam vivasvate yogam proktavanam avyam vivasman manave praha manurikshva kavai praha. कृष्ण कहते कि ये जो गीता का विज्ञान है, मैंने पहले कई लोगों को कहा है, फिर मनु ने इसको कहा, इसने इसको कहा, और जितने भी इमम राजर्षयो विदे, राजर्षियों ने जाना था और उन्होंने लोगों को बताया था। और मैंने यो योग जो मैंने आपको बताया है अर्जुन जी, अभी तक जो मैंने बात की वैसी गीता मैंने पहले भी बताई है। Then Arjun is asking a question कि अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत कथमेतद् विजानीयाम त्वम् आदौ प्रोक्तवानिति। ये कृष्ण, आपका जन्म तो अभी हुआ है और ये जो विवस्वान मनु, सूर्यदेव, विश्वाको वगैरह तो करोड़ों हजारों साल पहले हो चुके मैं कैसे मानूं कि आपने बताया होगा। See Arjun's line of questioning, he is a skeptic. Krishna says, I had told this to so and so thousands and millions of years ago. And Arjuna is now asking, how do I believe? You are born in this age. How do I believe that you would have said? You know? So it tells you that there was freedom to ask questions. There was freedom to even doubt Krishna. He is actually doubting Krishna. How do I believe? I can't believe. You are just born. You are like my friend. How do I believe that you would have said so much earlier? And then Krishna says, aparam bhavato janma, param janma vivasvata, katham etad vijaniyani, tvam adav proktavaniti. And then Krishna says, bahune me vyatitani, janmani tavacharjuna, tanam vetta sarvani, natvam vetta paramta. मेरे और तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, जो मैं जानता हूँ तू नहीं जानता है। और मैंने आपको जब ये श्लोक में समझा रहा था, मैंने आपको विधि बताई थी कि किस तरह हम भी अपने पूर्व जन्म के बारे में जान सकते हैं। अगर हम साक्षी भाव में आ गए, न हानि न लाभ न सुख न दुख न जन्म न मृत्यु, तुरीय अवस्था में, द थर्ड पॉइंट, अगर हम अपनी स्थित प्रज्ञता में आ गए तो हम भी अपने पूर्व जन्म के इतिहास में जा सकते हैं। इट इज इजी. It is one of the most easily achievable yogic siddhi. You know, in Srimad Bhagavad, Krishna has explained 18 kinds of siddhis, extra sensory perceptions you can achieve. But knowing your previous life is one of the easiest thing. Many people can do it, and many have done it. But Krishna easily says कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, मैं जानता हूँ तू नहीं जानता. The ease with which he says, you know, I know, but you don't know. It means he doesn't have any hesitation in saying. See, if he were telling a lie, if he was just, you know, bragging about it, then he would hesitate, you know. But he is not hesitating. Yes,
इट्स लाइक ए ब्लाइंड मैन. अगर कोई अंधा इंसान आपको पूछता है कि क्या सूरज निकलता है, is the sun rising every day? If a blind man is asking, he will say, oh yeah, sun is rising every day except when it is covered by the cloud. Because you know and you experience, you will say it on the spur of the moment. वही शिक्षण पे आप बताओगे अंधे इंसान को या सूरज तो निकलता है, उसमें कोई झिझक नहीं है आपको. The very fact that you are not hesitating means you are also telling the truth. क्योंकि झूठ बोलने वाला थोड़ा, one who is telling lies, you would kind of hesitate a little bit, psychologically, because he is always afraid that he may be caught telling a lie, and his credibility will be at stake. Krishna doesn't hesitate. And Krishna says, Ajopi san avyayatma bhutanam iswaropi san prakrutim swamadhishtaya sambhavami atmaya. कि मैं तो वैसे अविनाशी हूँ और अजन्मा हूँ, मेरा कोई जन्म नहीं था, फिर भी अपनी ही योग माया में आश्रित होकर मैं जन्म लेता हूँ. जहाँ भी जन्म होता हो माया के कारण जन्म होता है. हमारा भी जो जन्म होता है माया के कारण होता है. बुद्ध सेड डिजायर इज द कॉज ऑफ द रीबर्थ. अगर आपकी कुछ इच्छा रह गई है तो आपका जन्म होगा. क्यों? क्योंकि वो इच्छा की तृप्ति के लिए आपको शरीर चाहिए, इंद्रिया चाहिए, और विदाउट ए बॉडी यू कैन नॉट सेटिस्फाई योर डिजायर्स. तो एज लॉन्ग एज देयर इज डिजायर यू आर रिबॉर्न. सो एवरीबॉडी इज रिबॉर्न इन ए माया. एवरीबॉडी इज रिबॉर्न आउट ऑफ माया. हम हमारी माया में, हम हमारे सम्मोहन में जन्म लेते हैं. कोई इंसान रोता हुआ मरता है क्योंकि मरते वक्त हम सोचेंगे इतनी सारी मेहनत मैंने की, अभी $1,000,000 इकट्ठे किया, अभी मरना पड़ेगा. पता नहीं है ये सब मैंने डॉलर कूपन सेव करके ये स्टोर में गया, वो स्टोर में गया, अभी इतना सारा $1,000,000 कौन लेके जाएगा. तो इंसान माया में मरता, रोता हुआ मरता है. क्योंकि जितनी बड़ी माया होती है उतना ही हमारा जो अटैचमेंट है वो छूटता नहीं. A simple man living in a hut may die peacefully, but a great man living in a multi-million-dollar mansion, it will be very difficult for him to die, because he will be miserable, because to relieve himself or herself out of those material possessions is very difficult. So रोता हुआ इंसान मरता है तो फिर अगले जन्म भी रोता हुआ आता है ना. If you die while crying, you will be born while crying, and that crying is necessary medically, anatomically, to start the breathing process. But there are people who have left their body laughing, and there are people who have been reborn laughing and smiling. Their breathing was initiated by their laughter, not by crying. I told you last time about Pagal Baba. He left his body laughing like a mad person. And people were then convinced that yeah, he was really mad. Who would laugh at the time of death? From our definition, only a mad guy would laugh. कोई ऐसा पागल इंसान ही हंसेगा मृत्यु के टाइम. अगर कोई मर गया है और हम हंसेंगे तो लोग हमको मार देंगे. Don't you know the seriousness of the event? वैसे तो हंसना चाहिए क्योंकि now is liberated from this body. Now is liberated from. So people could not understand when Osho said, "Celebrate my death." When Osho Rajneesh said, "Celebrate my death," when I am gone, don't cry out, just celebrate, dance, bring musicians around. And when the disciples started dancing and celebrating, the whole world thought these people are as mad as is their master. जैसा गुरु पागल था वैसा चिले भी पागल है. But difficult to understand such phenomena. तो माया से लोग मरते हैं, फिर माया में जन्म लेते हैं. हमारा सम्मोहन, हमारी माया में हम. भगवान कहते हैं मैं भी माया से जन्म लेता हूँ, लेकिन वो मेरी खुद की माया है. पदार्थ की माया नहीं है, स्त्री की माया नहीं, पुरुष की माया नहीं, धन की माया नहीं है. भगवान कहते हैं मैं भी जन्म लेता हूँ, लेकिन मेरी ही योग माया में आश्रित होके मैं जन्म लेता हूँ. और उसके बाद भगवान कहते हैं जब भी धर्म की ग्लानि होती है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे. I reincarnate myself millennium after millennium. This is a promise. एक वचन है अद्भुत, भगवान ने गारंटी दी है गीता में.
कि मैं आता हूँ और आता रहूँगा। लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान नहीं है, भगवान अभी भी है। आना उसके लिए पड़ता है जो सोया हुआ है। He has to come only for those people who are asleep in their Maya. जो माया में निद्रावश है उनके लिए ही जन्म लेना पड़ता है। अगर भगवान कृष्ण इस युग में आते और इस युग में अगर मीरा है तो मीरा के लिए जन्म नहीं लेते, मीरा तो जागरूक है। या रमण महर्षि के लिए भगवान नहीं जन्म लेते, क्योंकि रमण महर्षि तो कृष्ण है या नहीं है फिर भी कृष्ण को पहचानते हैं। तो जो माया में सोए हुए उनके लिए, उनको जगाने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो वैसे तो भगवान है ही, अवतार लेना पड़ता है हम जैसे बुद्धुओं के लिए। To be very, this word is kind of cruel, you know. આપણા જેવા ડોબા માટે અવતાર લેવો પડે છે. We are forcing him to come because we are sleeping. If we were awakened, he will not have to come. He will not have to accept the limitations of a human being. See, even when the Supreme is reincarnated in a human being, he is facing the limitations of the human body. जब भगवान जब अवतार लेते हैं तो उनको भी दुख होता है। How miserable it must be to be born in a prison for Krishna. How miserable it is for Ram, you know, just to leave his father and go into forest. But he was independent of all these miseries and happiness. सब दुख और सुख से भगवान राम और कृष्ण, you know, और लीला की तरह करते हैं। They are only playing their part. For them, life is a stage. They are only acting. And because their acting is unattached, उनका जो नाटक है कोई भी आसक्ति से रहित है, उसके लिए उस नाटक को हम कहते हैं लीला। लीला इज ए हायर कॉइनेज। लीला किसको कहते हैं कि जब इंसान किसी भी चीज में आसक्ति से भरा नहीं है और फिर एक नाटक की तरह जिंदगी जीता है, इज नॉट अटैच्ड और जस्ट let it be so. It is what it is. Don't get entangled, don't be so miserable, don't be so happy about it. Okay, things come and go. I am situated in my inner self. मैं अपनी स्थित प्रज्ञता में स्थित हूँ, मैं अपने साक्षी भाव में स्थित हूँ, मैं अपनी उपेक्षा में स्थित हूँ। जो बाहर होता है वो होता है, लेकिन अंदर मैं बिल्कुल अलग हूँ। तो अपना काम करता रहता है। अगर आप पिता है तो अपना फर्ज निभाओ, आप पति हो, पत्नी हो, माता हो, पिता हो, गुरु हो, businessman हो, do your part. So that's what exactly the same thing Shakespeare had said. Okay, life is a stage and we are all actors on the stage. Honor and shame from no condition rise. Act well your part. There all honor lies. भगवान ने आपको जो भी रोल दिया है, छोटा सा भी रोल दिया है, but it is an important role. Do it totally. Do it with totality and without any expectation of the fruit. Then it becomes karma yoga. फल की आशा से रहित अपना कार्य करते जाओ तो वो कर्मयोग हो जाता है, और कर्मयोग से भी इंसान भगवान को पा सकता है। तो भगवान ने ये बातें बताई, और फिर भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मां वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सोजना। कि मेरे जन्म और कर्म जो है वो दिव्य है, दे आर डिवाइन, एंड वन हु अंडरस्टैंड्स इट इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म डिवाइन, जो मेरी दिव्यता को तत्वतः पहचानता है, उसका फिर देह छोड़ने के बाद फिर से जन्म नहीं होता है, वो मुझे ही प्राप्त होता है। सो वन मोर प्रॉमिस ही गिव्स, यू नो, इफ यू अंडरस्टैंड माय डिविनिटी, ही सेज, यू विल आल्सो रीच दैट डिविनिटी, बट यू कैन नॉट, या इंटेलिजेंटली वी में अंडरस्टैंड, बुद्धि से हम समझ पाएंगे, पर ये बुद्धि से समझने की बात नहीं है। अंदर से जब आप अनुभूति करते हो तभी दिव्यता को प्राप्त कर सकते हो। जो भी हम इंद्रियों से अनुभव करते हैं इस संसार में, जो हम हमारे मन से अनुभव करते हैं, हमारी बुद्धि से अनुभव करते हैं, वो जगत का नाम है लौकिक। उसको कहते हैं संसार। But when somebody experiences things beyond sense organ, beyond mind, beyond the barriers of time and space, तो उस जगत का नाम है अलौकिक। तो अगर हम भी मन के पार चले जाए, बुद्धि के पार चले जाए, इंद्रियों के भोग
सुख और दुख से पार चले जाए। जगत के सारे पोलैरिटीज से, द्वंद्व से अगर हम भी पार थोड़े थोड़े चलने लगे तो हम भी दिव्य जगत का अनुभव कर लेते हैं। और जब ऐसा होता है, जब हम भी दिव्य जगत का अनुभव करने लगते हैं, तो भगवान कहते हैं कि फिर आप मेरी दिव्यता को फिर आप समझ पाओगे, and then only you will reach me. See, if I am a doctor and if I am talking to other people, they may not understand clearly. But if I am talking to another doctor, they will readily understand what I am talking about. The problems of a mother could be only be understood by another person who is a mother. Other people can only imagine. So Krishna says, if you have experienced divinity, अगर आप दिव्यता में चले गए हो, आप इंद्रिय सुख के आगे निकल गए हो, इंद्रिय सुख का ही जिसका अनुभव है वो लौकिक जगत में ही बंधा रहता है, वो अलौकिक से वंचित रह जाता है। भगवान कहते हैं जिसने अलौकिक का अनुभव किया है इस जगत में, यहाँ रह रहे, जो संतत्व को उपलब्ध हो गया है, जो जगत की पोलैरिटी से सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण जस अपयस शुभ अशुभ मोक्ष बंधन सभी पोलैरिटी से जो पार निकल गया अपने साक्षी भाव से, और अपने कर्तापन से जो मुक्त हो गया, अपने अभिमान से जो मुक्त हो गया, और धीरे धीरे लौकिक अलौकिक जगत का जिसको अनुभव होने लगा है, जिसको दिव्यता की पहचान होने लगी है, ऐसा इंसान मेरी दिव्यता को समझ पाता है। और ऐसा इंसान मृत्यु के बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, वो मुझको प्राप्त हो जाता है। So what is it? He is explaining how you can reach me, and he is also giving you a guarantee that you will not be reborn again. You will not have to pass through the same miseries again and again and again and again. It has been happening to you for millions of times, but you can liberate yourself by so doing. So he is promising that. And now he says, Vitaraga Bhaya Krodha Man Maya Mam Upasrita Bahavo Jnana Tapasa Puta Mat Bhavaga, जिसके राग भय क्रोध चले गए हैं और जो मुझसे आश्रित हो गया है, वन हु इज, जिसने मेरी समर्पितता का स्वीकार किया है। ऐसे बहुत ज्ञानी जन, ऐसे बहुत तपस्वी योग मुझको प्राप्त हो गए हैं। They have already attained me. So in order to further confirm his previous statement, he's saying, yeah, many people have already done. Yeah, you can also do it. See, he's making it easy for us. He's like a, sometime in my childhood, I remember we had a math teacher. He used to teach us higher mathematics. But he would make it so simple. He say, yeah, you can also do it. You can also do it. It's easy. You can do it. You can do it. You can. It's within your reach. Don't be grabbed by what people are saying. Oh no, higher math is very difficult. You cannot do it. It's easy. In fact, you can score high. Similarly, Krishna is trying here. He says, Baho Jnana Tapasa. Many people have reached. बहुत लोगों ने मुझे पा लिया. यानी he is using the term vitarag. Vitarag does not mean वैराग्य. राग से विपरीत होता है वैराग्य. लेकिन he is not talking of वैराग्य. He is talking of vitarag. Vitarag means न राग न वैराग्य, दोनों से ऊपर. न सुख न दुख, न भोग न त्याग, न लोभ न दान, न पाप न पुण्य, सभी से तीसरी अवस्था में. ये समझना कठिन है क्योंकि ये बहुत आसान है. अगर राग को वैराग्य में बदल लेना बहुत आसान है. कोई धन के पीछे दीवाना था, धन मिला लेकिन बहुत दुख पाया, फिर धन का दुश्मन हो जाता है. नहीं चाहिए आपको. आई हेट. कोई स्त्री के पीछे दीवाना था, बहुत अच्छी स्त्री को पा लिया, फिर भी दुखी हो गया, अभी स्त्री का दुश्मन हो गया. It is very easy to convert your attachment into total hate. Very easy. कई बार I have seen many women, they liked men and now they hate men. They hate every man on the planet. सब पुरुषों के घृणा करती है. और कई पुरुष भी ऐसे, I hate all men, they are the same kind. And there are many men also, they say, no, I hate all women, they are the same kind. ये बड़ा आसान है अपने राग को विराग में बदल लेना. It is very easy. It is another polarity. But उसमें कोई मौलिक भेद नहीं है.
qualitatively the person has not changed. He has only turned his face 180 degree. कोई संसारी है स्त्री के पीछे भागता है, कोई साधु है स्त्री से भागता है, लेकिन द सेंटर इज द वुमन. कोई योगिनी स्त्री है कि वो पुरुष से भागती है, या कोई संसार में स्त्री वो पुरुष के प्रति आकर्षित होती है, लेकिन दोनों में कोई मौलिक भेद नहीं है. एक स्त्री के प्रति भागता है, एक स्त्री से भागता है, दोनों एक दूसरे से पीठ किए खड़े हुए, लेकिन दोनों में कोई मौलिक भेद नहीं है. जो स्त्री से भाग जाता है उसका मन स्त्री में ज्यादा उलझ जाता है, क्योंकि भाग के भी फिर कल्पना करता है ना. And imagination is more powerful than the actual thing. You know, in imagination you imagine a lot of things, and you imagine about a woman more about that woman than that woman actually really is. You know, इसलिए स्वप्न स्त्री हमेशा ज्यादा सुंदर होती है than the actual स्त्री. और स्वप्न पुरुष हमेशा स्वप्न में ही होता है, एक्चुअल होता ही नहीं, क्योंकि then you can add your imagination to it. तो जो भाग जाता है, जो धन से भागता है, स्त्री से भागता है, पुरुष से भागती है, और जो स्त्री के पीछे भागता है या धन के पीछे भागता है, उसमें कोई मौलिक भेद नहीं है. दोनों का आकर्षण का या घृणा का केंद्र एक ही है. उसका जो उनकी एकाग्रता में कोई भेद नहीं है. तो भगवान कहते हैं कि ये संसारी से योग्य है कि इसको भोगो, ना ये संसारी से योग्य है कि इससे भागो. डोंट रन अवे फ्रॉम इट. अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड देन यू विल लिबरेट योरसेल्फ. भोग से भागना नहीं है, न स्त्री से भागना है, न पुरुष से भागना है, न धन से भागना है, न संसार से भागना है. रहो संसार में और संसार को समझो, संसार भोग की केमिस्ट्री को, भोग के रसायन को समझो, और फिर भोग से मुक्त हो जाओ. If you are running away, you know, there are many sadhus, the so-called sadhus, they run away from sansar, but their mind is in the sansar. कई लोगों ने साधुता को अपने आप को अपने ऊपर ओढ़ लिया है. They forced साधुता onto them. कबीर जी कहते हैं साधु कहलाना कठिन है, लंबा पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर. So then when people are forced, then you come across so many priests abusing children because they have enforced, some kind of chastity onto them. कई साधु है वो मंदिर में भी फिर वो पकड़े जाते हैं. We should pity them because they have not understood Krishna well. We should not criticize them. उनकी आलोचना नहीं करनी है, but understand they have not understood Krishna very well. भागना नहीं है, कहीं भी भागना नहीं है. ये बड़ा आसान है लगाव को विरोध में बदल देना. जो भागता है या उसके पीछे जाता है उनमें कोई मौलिक भेद नहीं है. दोनों का केंद्र धन या स्त्री ही है, दोनों का केंद्र धन या पुरुष है. हालांकि जो भागता है ज्यादा विक्षिप्त हो जाता है, he becomes neurotic. क्योंकि ऊपर से तो वो स्त्री से भागा हुआ है, लेकिन उनका मन स्त्री में लगा हुआ है. भगवान कहते हैं you are cheating yourself. You may be physically running away from material gratification, but if your mind is engaged in material gratification, you are cheating nobody but your own self. इसलिए कृष्ण कहीं भी नहीं भागे. He never ran away anywhere. 16,108 women wanted to marry him. He said, okay, you can marry me. Even while being in the sense gratification, he is totally away from it. Now this is very difficult. Only Krishna can do it. Only an advanced yogi can do it. शंकराचार्य से योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीन यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति. ए ट्रू योगी, जो सच्चा योगी है, चाहे भोग में हो या योग में, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता है. भोग में रह के भी वो भगवान पे समर्पित है और योग में रह के भी वो भगवान के साथ है, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है. कृष्ण गिव्स अ वेरी नाइस एग्जांपल इन श्रीमद् भागवत. जिस तरह पका हुआ धान्य अगर आप उसको जमीन में डालो वो फिर से उगता नहीं है, फिर से स्प्राउट नहीं होता है. उसी तरह जिसको भगवान के रंग से रंग गया है,
आध्यात्मिकता जिसके हृदय में पहुंच गई वो चाहे संसार में रहे, लेकिन वो संसार उसको कुछ टच भी नहीं कर सकता है। जस्ट एज ए कुक्ड अप grain of rice or wheat, if you throw it in the land, it's not going to sprout. Similarly, one who is totally into his own self, one who is colored with spirituality, howsoever, in whatever way he lives, संसार में कितना भी जोर से रहे, कितनी भी स्त्रियों के साथ रहे, कितने भी पुरुषों के साथ रहे, उसको कोई फर्क पड़ता नहीं. It doesn't matter to him. Shankaracharya went for debate with Mandan Mishra, and he didn't want to defeat anybody. उनको कुछ किसी को हरा नहीं था, लेकिन he wanted to point out to all the scholarly guys in India that look, your Vedas and your Gita and Upanishad on the tip of your tongue, लेकिन it doesn't mean that you know the real thing. Just cramming up Gita or just being able to speak on Gita for hours, it doesn't mean that you attained him. The real thing is only with love. आप केवल भक्ति से भगवान को प्राप्त कर सकते हो. So then he said, Bhaja Govindam Mudmate. Oh stupid guys. He called all the pandits stupid guy. Bhaja Govindam Mudmate. संप्राप्य सन्निधे काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रुम करने. तुम्हारा ये grammar, your grammar will not be useful at the time of death. At the time of death, how much you have been aligned with the Supreme will be useful. That will liberate you also. Bhaja Govindam, Bhaja Govindam, Bhaja Govindam. So he went to, Mandan Mishra was the greatest Pandit in India that time. And so was Kumaril Bhatt. And he went and argued with them, but he was so intelligent that in arguments, he defeated all the Pandits. सभी पंडितों को शंकराचार्य ने उनके ही argument से हरा दिया. He was so intelligent that he used their own way of argument and defeated them by showing the flaws in their own line of logic. And they were so convinced and they fell at his feet. And they saw that this young man, he has not come like a pandit, he has come like a real enlightened person. ये पंडित नहीं है, ये प्रज्ञावान पुरुष है. ये पंडित नहीं है, ये मेधावी पुरुष आया है. तो Mandan Mishra may be like 60-70-year-old, or he bowed down at the feet of Shankaracharya, who must be like 25-28 years old. Because this young man was extraordinarily intelligently brilliant and also enlightened within, and he could convince. And then Bharti Mishra, his wife. Now, the judge for the dialogue between Shankaracharya and Mandan Mishra, the judge was Mandan Mishra's wife. Because Mandan Mishra said, no, my wife will rule in my favor. And Shankaracharya said, no, don't worry, I have more trust in her. She'll be independent. She will rule in favor of one who has really won. And she ruled that my husband has lost and Shankaracharya has won. Maybe the modern day wife might say, yeah, she took the revenge. See, this is the way we think, in our days. Yeah, this was the best opportunity to take the revenge on the husband. That was not the case. She independently said, yeah, Shankaracharya, this young man. But then Bharti Mishra said, you defeated my husband, again, you have not defeated me. So let me ask you a question. So she asked questions about sex. See, even in those days, it was open thing. A woman asking a question about sex to a yogic guy like Shankaracharya, we cannot believe it. But we are ourselves so narrow-minded in today's world that we cannot accept the open-mindedness of that old time. See the difference. उस जमाने में लोग, they could discuss things openly. And Shankaracharya said, well, I know about sex. I have read theoretical things about sex, but I have not experienced sex. So I accept my defeat. You defeated me. But you gave me 6 months. I'll experience sex and come back. Now people were shocked. इस शंकराचार्य तो ब्रह्मचारी है, उन्होंने अविवाहित है, कभी भी उन्होंने शादी नहीं की है, शादी करने वाले भी नहीं है. How will he experience sex? Is he going to marry somebody? Shankaracharya didn't marry anybody. He, with his yogic power, he entered the body of a king who had the experience of sex.
So he got his experience by entering his body. Now many people say Shankaracharya भ्रष्ट हो गए because he experienced sex, not if not directly, indirectly. But for Shankaracharya, yoga rato va bhoga rato va sanga rato va sangavina yasya brahmani ramate chittam nandati nandari. Even if Shankaracharya actually enters sex, but he is still untouched by sex. This is very difficult to understand. इतने 16,000 स्त्रियों के साथ रहने के बावजूद और उनके साथ इतने पुत्र पुत्री होने के बावजूद भी कृष्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी है. It's difficult, very difficult to understand, but it is possible, it is doable, and Krishna's Vitrakta is taking us into that. जहाँ हो जैसे हो वहाँ ठीक हो. You don't have to run away. Be there but remain independent. Do whatever you have to do. If somebody gives you nice food today, then enjoy that nice food. कई लोग कहते हैं नहीं हम तो सिर्फ सूखी रोटी खाते हैं, ये हमारी तपस्या. हमारे योगी कहते हैं ऐसा नहीं है. जो सच्चा योगी है ना वो कहेगा ठीक है, जो सामने आता है, जो भगवान ने आज दिया, आपने श्रीखंड पूरी दिया या लड्डू दिया या कुछ भी अच्छी चीज खाने को दिया, वो खाते हैं. क्योंकि योगी जो है वो कहेगा अन्नम ब्रह्म. अन्न में भी ब्रह्म है. अगर ब्रह्म चारों ओर व्याप्त है तो अन्न में भी ब्रह्म है. रसो वैसा, जो भी रसधार है इस जगत में वो उसका ही स्वरूप है, इसलिए उसका कोई विरोध नहीं है. कई लोग कहते हैं कि ये सब टेस्ट जो है इट इज ओनली अप टू योर थ्रोट, देयर आफ्टर देयर इज नो टेस्ट, सो व्हाई आर यू मैड आफ्टर टेस्ट. योगी लाइक मीरा और शंकराचार्य विल से नो नो आई एम नॉट मैड आफ्टर टेस्ट बट आई डोंट हेट इट. कोई दिन भोजन, कोई दिन लाडू, कोई दिन फाकम फाका जी, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी. मीरा सेज कोई दिन someday if you give me nice meal I'll take it, but someday if there is nothing to eat, only चना खाना है और सिंग चना फाकवाना है, तो उसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई एम जो भी अस्तित्व हमारे सामने पेश करता है उसको बड़ी भक्ति से, प्रेम से, समर्पित भाव से आप उसका उपयोग करो, उसमें कोई गलत बात नहीं है. तो कृष्ण की जो वितरागता है वो वितरागता बड़ी अलग है. कई लोग कहते हैं कि हमने इतना इतना त्याग किया है. कहीं अभी भी आज साधु है वो कहते हैं हमने इतना त्याग किया, जब मैं संन्यास लिया इतनी जमीन छोड़ी, इतना मकान छोड़ा, इतनी संपत्ति छोड़ी. लेकिन अभी भी अगर वो कहते हैं 40 साल के बाद भी कि हमने इतनी लात मारी थी संपत्ति को, तो लात मारी होगी लेकिन ठीक तरह से लगी नहीं. क्योंकि अगर छोड़ी है तो फिर गिनती क्यों करते हैं? Why are you even counting? Your inner psyche will forget about it. If you are counting even today, then you are still attached to it. You are still attached to it. कृष्ण को उद्धव जी सवाल पूछते हैं कि आपने कितने ब्रह्मांडों की रचना की है. कृष्ण ने कहा मैंने गिनती नहीं रखी. I have not maintained a count. Not that he cannot count. He said असंख्य ब्रह्मांडों की रचना की, लेकिन I have not kept a count. हम मनुष्य की क्या है, अगर कोई अच्छी चीज करते तो विल कीप ए काउंट. हम लोग हमेशा काउंट रखते हैं, देखो हमने इतना किया इतना का. और फिर अच्छा भी काम किया हो, छोड़ भी दिया हो, तो भी अगर काउंट रखा है तो अटैचमेंट है. अगर मैं काउंट रखता है इतना इतना डोनेशन मैंने किया होगा, लेकिन अभी भी अटैचमेंट है. ऐसा नहीं कि आपने धन छोड़ा है लेकिन छोड़ने के बाद भी अटैचमेंट है. तो कृष्ण की ये जो वितरागता की बात है वो कहते हैं न आसक्ति न विरक्त. वो कहता है न त्याग न भोग, दोनों के बीच आप खड़े हैं. और उसी को तो इसी अवस्था में बहुत लोग होते. शंकराचार्य जैसे लोग हुए, कोई अटैचमेंट नहीं. अच्छा भी काम, सुबह सुबह परित्यागी भक्ति मान्य प्रिय नर. भगवान कहते शुभ और अशुभ दोनों का त्याग कर दिया. हमको आश्चर्य लगता है शुभ का भी त्याग, लेकिन जो इंसान साक्षी भाव में, वन हू इज सिचुएटेड विद इन हिज ओन सेल्फ, उसके हाथों से अशुभ हो ही नहीं सकता. वो शुभ ही होता है, लेकिन शुभ के साथ अटैचमेंट नहीं है. देयर इज नो अटैचमेंट, कोई भी आसक्ति नहीं है. इज टोटली अवे फ्रॉम. पद्म पत्र इव अम्बसा. जिस तरह पानी में कमल होता है, पानी से अस्पर्शित रह जाता है, उसी तरह योगी जिएंगे. तो कृष्ण की ये जो वितरागता है वो सच्ची वितरागता है. तो शंकराचार्य ने हालांकि
काम वासना क्या है, सेक्स क्या है, उसका अनुभव किया, फिर भी शंकराचार्य he is untouched by whatever is experience because he is in a total vitaragta. So this vitaragta is very difficult to digest, you know. एक एक गांव में एक पुजारी था और पुजारी के सामने ही एक सुंदर वेश्या रहती थी. There was a beautiful woman selling her body, just living in front of a nice house. But every time pujari is doing aarti and puja, but his mind is in that woman, and he would be cursing himself कि सारे गांव के लोग उसके साथ शारीरिक व्यवहार करने के लिए रात को आते, मैं तो जा नहीं सकता क्योंकि मैं जाऊंगा तो लोग कहते पुजारी आप यहाँ क्या कर रहे हो. It is very dicey situation, very critical, very sensitive. I can't even go although I want to go. तो मैं नहीं जा पाता क्योंकि मैं पुजारी ठहरा. जब भी वो प्रार्थना करवाते थे, मंदिर में कोई भी विधि कराता, उनका मन जो है वो वेश्या में रहता था क्योंकि वेश्या बड़ी सुंदर भी थी. लेकिन वेश्या उसको मंदिर में आने का अधिकार नहीं था क्योंकि वो वेश्या ठहरी, गांव वाले उसको आने नहीं दे, लेकिन उसका मन भगवान में था. मजबूरी से उसको ये धंधा करना पड़ता था, हालात से, गरीबी से उसको ये अपने शरीर को बेचने का विक्रय करना पड़ता था. तो जब भी मंदिर में आरती होती थी वो अपने दरवाजे की क्रैक में से भगवान का दर्शन करती थी दूर से कि कल अगला जन्म मेरा ऐसा होगा कि मैं मंदिर की पुजारन बनूंगी. उसकी ऐसी भावना रहती थी. हालांकि उसको ये अपना देह का विक्रय करना पड़ता था अपने गुजरान के लिए, लेकिन उसका मन ऊपर से तो वो ये ऐसे पाप में डूबी हुई थी, लेकिन उसका मन भगवान में डूबा हुआ था कि मेरी ये कम नसीबी, मुझे ऐसा करना पड़ता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगला जन्म मेरा पुजारन जैसा हो. मैं चाहती हूँ कि भगवान के दर्शन के लिए मैं जा पाऊँ. और पुजारी ऊपर से फिजिकली ही वॉज विद द लॉर्ड, भगवान की पूजा करता था, विधि करता था, सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाता था, लोगों का वास्तु पूजन करवाता, लेकिन उसका मन था वेश्या में. फिर दोनों मर गए. तो मर गए तो वो वेश्या स्वर्ग में गई और ये पुजारी जो है नरक में गया. तो लोग, पुजारी ने कहा मैं तो पुजारी था, there is something wrong, I should be in the heaven, I was pujari, and that Vesya should be in the hell. She was a Vesya. Then Yamraj said, no, everything is all right, it's the right thing to do. तुम चाहे पुजारी थे लेकिन तुम्हारा मन तो उसमें था. कहाँ मन है? Where is your mind? तुम्हारा भाव कैसा है? भगवान भाव का भूखा है. Therefore he says in Gita, मन मना भाव. Give me your heart, give me your mind. अगर मैं सोचूं कि आपको एक चाटा मार दूं, हालांकि चाटा मारा नहीं है, तो ऊपर से तो मैं कह सकता हूं कि आपको मैंने चाटा नहीं मारा है, आई हैव नॉट डन इट, पर अंदर से सोचा तो काम हो गया. आध्यात्मिक जगत में आप क्या अंदर से सोचते हो उसका महत्व है. ऊपर से क्या करते हो उसका कोई महत्व नहीं. ऊपर से आप करो या ना करो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से आप क्या सोचते हो. अंदर से सोचा तो वो काम हो जाता है क्योंकि विचार ही आपका व्यक्तित्व बन जाता है. तो ये जो बड़ी गहन बात है. बुद्ध का एक शिष्य था, एक गांव में बुद्ध आए तो उनके शिष्य वृंद भी आए, तो ये ऐसी बात थी. तो उस गांव में भी एक बड़ी सुंदर वेश्या थी. तो बुद्ध के भिक्षुक बुद्ध के साथ रहते थे, लेकिन उनका मन भी संसार में था. ऐसा नहीं कि आपने भगवे कपड़े धारण कर दिए तो आप बिल्कुल सन्यासी हो गए, आप फिर भी संसारी हो सकते हो. मैं तो ये कहता हूँ कि जो संसार में रहता है उनके अगर स्वप्न देखो तो उनके स्वप्न तो कुछ अच्छे होते हैं, लेकिन जिसने जबरदस्ती साधुता ओढ़ी है उसके स्वप्न आप रात को देख पाए, इफ यू कैन सी देयर ड्रीम यू विल फाइंड कि आप बड़े अच्छे इंसान हैं, वो साधु से बड़े अच्छे. संसारी के स्वप्न साधु से इतने भ्रष्टाचारी नहीं होते जो जबरदस्ती साधु के बैठा है. भगवान कहते मिथ्याचार तदोच्यते. वो ऊपर से साधु है लेकिन मेरी वितरागता को समझे नहीं. ऊपर से तो वैरागी है लेकिन मेरी वितरागता जो है वो समझा ही नहीं है. he is not into that. So don't cheat yourself, he says. तो बुद्ध ने गांव में प्रवेश किया, अनेक शिष्य थे, तो अनेक शिष्यों में
कई शिष्यों को वो वेश्या पसंद थी तो जानबूझकर वो भिक्षा मांगने वो वेश्या के घर से निकलते थे, जस्ट टू हैव ए लुक एट हर, यू नो। और एक दूसरा भिक्षुक था, वो बिल्कुल ये डिफरेंट क्वालिटी, वो ही जस्ट हैपन टू पास थ्रू एंड ही वाज एक्सट्रीमली हैंडसम, वेरी स्ट्रॉन्ग गाय. सो द वेश्यास टोल्ड हर that why don't you stay with me during this monsoon season? As long as Buddha is staying here, you are going to stay in this town. Why don't you stay with me? So he said, no, I'll ask for the permission from my master. Now, how unusual statement. And which master will give you permission to stay with a prostitute? No master will give her. Next day he got up in the meeting and he asked Buddha, he told Buddha that this has happened. I was passing by, naturally, I was not intentionally passing. I was naturally passing and she has invited me. Should I go there? Other bhikshuk said, what kind of question? You can't, aren't you ashamed of asking such a question? अभी ऐसा सवाल कोई पूछा सकते हैं कि your answer, Buddha will obviously say no. Then Buddha said, no, you go and start living with her. Then all the जो बाकी भिक्षुक थे वो तो they were shocked. What is Buddha saying? To live with that kind of woman? Buddha said, if Buddha told, so all the bhikshuk told Buddha, okay, what? Why are you giving? Why are you permitting? And Buddha said, if you guys had asked for the permission, I would not have given. But I know that guy, he can go. So he went. He lived with that lady, and she tried to seduct him, but he was like a yogi. He was seated in his own self. He was seated in his own self all the time. After 3-4 months, he came back. But when he came back, that woman also came and became Buddha's disciple. The problem is vitaragta. Even if you are in the middle of भोग, अगर आप भोग में रहते हो फिर भी आप सन्यासी रह सकते हैं. और कई सन्यासी ऐसे है कि भोग से दूर चले गए फिर भी भोग में. So कृष्ण की वितरागता very difficult to understand, very difficult to define. So कृष्ण कहते हैं कि न राग न वैराग्य, तुरीय अवस्था, the third point. If you are situated in then wherever you are, it doesn't matter where you are. If you are a married man, remain a married man. Stay in your sansar. If you are a married woman, remain a married. I am not telling you to run away, but understand the chemistry of sense gratification. इंद्रियों के भोग को, रसायन को समझो और समझने के बाद आप मुक्त हो जाओ. Understand the chemistry of sense gratification. Understand the chemistry of sex, and then only you will be able to come out of sex. So go into sex, but with awareness. Then one day you will understand there is nothing in it. I've been wasting lives after lives after lives after lives in this sense gratification. Now it is time to liberate yourself. And when you liberate on your own, then it's a total freedom. If you liberate when somebody tells you to, आज किसी महाराज ने बताया, किसी बापू ने बताया, किसी ने गुरु ने बताया, और आप व्रत करने लगते हो, उपवास करने लगते हो, ऐसा नहीं, अपने आप हो जाता है. देखो महावीर स्वामी ने उपवास नहीं किए थे, महावीर स्वामी के उपवास अपने आप हो गए थे. He was so much centered into his own self, he even forgot to eat. Out of 4 years, for 365 days, he forgot to even eat because he was so much situated in his own self. He had lost identity with his body. अपने शरीर के साथ जो तादात्म्य था, वो भूल गए थे, तो उपवास अपने आप हो जाते हैं. लेकिन कई लोग हैं, उनके फॉलोअर जो उपवास जबरदस्ती करते हैं, फिर उनके लिए कष्टदायक हो जाते हैं. कई लोग कहते हैं कि 21 दिन के उपवास किए या 10 दिन के उपवास किए, और फिर उनकी शोभा यात्रा निकलती है. अगर आप 21 दिन के उपवास करने वाले हो, 20वें दिन के आपको कोई कहे कि शोभा यात्रा का प्रोग्राम कैंसिल है, तो then you will be so angry. आपका सर्कस निकलने वाला था कि आपके सम्मान के लिए, लेकिन कोई कहे अभी शोभा यात्रा इज नॉट पॉसिबल, देयर इज सम प्रॉब्लम. देन यू विल से तो मैंने क्यों उपवास किए. आप उसका गला पकड़ोगे. इसका मतलब है आपने उपवास अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए नहीं किए, आत्म शुद्धि के लिए से आपने सिर्फ अपने ईगो को कठिन करने के लिए किए. तो भगवान कहते हैं ज्ञान तपसा.
ज्ञान के आधारित तपस्या। हर तपस्या अहंकार पे आधारित होती है। कोई इधर मंदिर के नीचे खड़ा हो जाए एक पांव पे ऐसे और लोग उसको सम्मान देने लगे, देखो एक महीने से ऐसे खड़ा है धूप में, बारिश में, सर्दी में, कि कितना तपस्वी है। कोई अगर जितना आप प्रशंसा करोगे उसका अभिमान उसका बढ़ता है, वो ऐसा ही करेगा। लेकिन कृष्ण कभी नहीं कहते कि आप ऐसी तपस्या करो। कृष्ण सेज जस्ट बी योरसेल्फ, बी ए नॉर्मल इंडिविजुअल। देखो भगवान कहते हैं सहज समाधि, नेचुरली रिमेन व्हाट यू आर, रिमेन एज ऑर्डिनरी एज एनीबॉडी। डोंट ट्राई टू ड्रॉ अटेंशन, डोंट ट्राई टू ड्रेस अप डिफरेंटली। कई लोग हैं बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, कई लोग कहते हैं नहीं तो मैं तो साधु हूँ। These are the two extremes. A true yogi will remain very normal because he doesn't want to draw attention. एक ईसाइयों का पंथ था इन 19th century कि जितने कोड़े वो खाता है सुबह उतना वो ज्यादा सन्यासी, ऐसा लोग मानते थे। कोई 100 कोड़ा खाता है तो उस लोग देखने भी आते हैं कि कौन ज्यादा सन्यासी है, कौन ज्यादा क्राइस्ट का अनुयायी है, कितना ज्यादा कोड़ा खाता है उसके ऊपर वो लोग अनुमान करते। ये पागलपन है। इससे क्या फर्क पड़ता है आप कितने कोड़े खाते हो। भगवान कहते हैं ये एक्सट्रीम्स में मत जाओ, बीच में रहो। माय वेज इज आई एम नॉट टेलिंग यू टू टॉर्चर योरसेल्फ, बी योरसेल्फ। भगवान कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योग्य प्रमाण में आहार, योग्य प्रमाण में उपवास, योग्य प्रमाण में निद्रा, योग्य प्रमाण में जागना। संसारी जो है वो ज्यादा खाता है, सन्यासी जो है वो कम खाता है, लोगों को बताने के लिए देखो मैं कितना कम खाता हूँ, या 3 दिन के बाद एक बार खाता हूँ। योगी जो है न कम खाता है न ज्यादा खाता है, जितनी शरीर की आवश्यकता है उतना खाता है। संसारी जो है वो ज्यादा सोता है, स्लीप्स ओवर द मॉर्निंग, 11 बजे उठता है, 12 बजे उठता है, वाई स्लेप्ट ओवर द मॉर्निंग। योगी जो है सिर्फ 3 घंटा सन्यासी जो है, साधु जो है, लोगों को बताने के लिए 3 घंटा सोता है, 4 घंटा सोता है। योगी जो है वो बिल्कुल जितनी नींद लेनी चाहिए उतनी लेता है। कोई बच्चा है तो 20 घंटा सोएगा, कोई युवान इंसान है तो कम से कम 9 घंटा सोएगा, कोई प्रौढ़ावस्था में है तो 7 घंटा सोएगा, 6 घंटा सोएगा। जितनी आपकी उम्र है उसी के हिसाब से आप सो। भगवान कहते हैं योग्य प्रमाण में। अगर सहजता से आप चलित हो जाते हो, असहज हो जाते हो। जो ज्यादा खाता है वो भी असहज है, जो कम खाता है वो भी असहज। जो कम खाता है वो हम कहते हैं वो बहुत वैरागी है, जो ज्यादा खाता है वो कहते हैं बहुत रागी है। भगवान के न राग न वैराग्य वितराग। जितना आपको खाना है उतना खाओ, ज्यादा भी मत खाओ, तो आपकी तपस्या भी आसान रहेगी। तो ये बात जो है बड़ी समझने जैसी है। वितरागता, be yourself, remain in the center, don't fluctuate between the polarities of life, don't oscillate like a pendulum, stay in the middle, अपने मध्यम निकाय में रहो, अपना अहंकार छोड़ो। कई लोग ऐसे होते हैं ना, उनका अहंकार इतना सघन होता है। बुद्ध का एक शिष्य था और नया शिष्य था, तो वो इतना उपवास करने लगा। दूसरे जो शिष्य थे वो 1 दिन में 1 बार खाते थे, ये 2 दिन में 1 बार खाने लगा। दूसरे लोग जो है सीधे रास्ते पे चलते थे, ये कांटे भरे रास्ते से चलने लगा। दूसरे शिष्य थे 7 घंटे सोते थे, 6 घंटे, ये सिर्फ 3 घंटा सोने लगा। इतनी कठोर तपस्या करने लगा दिखावे के लिए, देखो मैं भी तपस्वी हूँ। क्योंकि जब बुद्ध का शिष्य हुआ उससे पहले और शिष्यों ने बताया था बुद्ध को कि इसको आप संन्यास मत देना, उसको शिष्यत्व मत देना, क्योंकि ये तो बड़ा भोगी है। तो टू प्रूव अदर वे राउंड ही स्टार्टेड डूइंग एक्सट्रीम थिंग्स। फिर बुद्ध उसके पास आए कि देखो जब तू मेरा शिष्य नहीं हुआ था उससे पहले तो एक राजकुमार था, अच्छी वीणा बजाता था। वीणा के तार अगर तंग है तो कैसा संगीत बजता है तंग होता है तो बहुत तीक्ष्ण संगीत बजता है, ठीक तरह से नहीं बजता है। अगर वीणा के तार ढीले है तो कैसा संगीत बजता है, नहीं वो तो संगीत ही नहीं पैदा होता है ठीक तरह से। आध्यात्मिकता में भी इट शुड बी मिडल, डोंट गो ऑन द एक्सट्रीम। अहंकार जो है इट कैन नॉट स्टे इन द मिडल। जो अहंकार जो होता है वो मिडल में नहीं रह सकता है। अगर आपको
कुछ बात बताए, अगर आप न माने तो वो कहेगा ठीक है आप चले जाओ। यू नो दे विल गो ऑन द एक्सट्रीम। कोई कहता है कि नहीं, अगर मैं गुजराती समाज का प्रेसिडेंट नहीं बनता तो देन आई एम रिमूविंग माई सेल्फ फ्रॉम द मेंबरशिप। इसमें मेंबरशिप से जाने की क्या जरूरत है, जो कोई नहीं बना था ठीक है नहीं बनो या वाइस प्रेसिडेंट हो जाओ या ट्रेजरर बन जाओ, लेकिन अहंकार जो है ना वो एक्सट्रीम पे जाता है। दे गो ऑन टू द अदर एक्सट्रीम्स and it happens in a day-to-day normal argument. People take the extreme, okay, then I'll do this. If you don't want to do this, okay, fine, I'll do this. Then is the extreme way. And that extremism comes out of ego. आपने मेरी बात नहीं सुनी, आप क्या समझते हो, मेरी बात आपको माननी चाहिए, तो मैं अभी ये करूँगा। तो कोई आपकी बात नहीं मानता है, आप कहेंगे मैं उपवास करता हूँ। इट इज़ ऊपर से तो अच्छा लगता है, देखो ये उपवास करता है, महात्मा गांधी बन रहा है, बट इट इज नथिंग बट ए वायलेंस ऑन द अदर पर्सन। थिंक ऑन दोज लाइंस। अगर कोई कहता है कि अगर पिता कहता है अगर ये लड़की से शादी नहीं करेगा तो मैं 7 दिन का उपवास करूंगा ऊपर से लगता है तो पिताजी तो अच्छे उपवास करते, इज नॉट बीटिंग हिम अप, इज टॉर्चरिंग हिमसेल्फ, बट दिस इज आल्सो वायलेंस ऑन समवन एल्स। हिंसा का तीर आप किसी और पे छोड़ो यार, अपने आप पर छोड़ो। हिंसा तो हिंसा ही है, only the direction has changed. The direction of the arrow, instead of going on the other side, it is coming on to you, but you are, कृष्ण कहते हैं अपने ऊपर भी हिंसा मत करो, don't torture yourself. कृष्ण's path is very practical. तो ये बातें समझनी जैसे, कृष्ण की बात बड़ी अद्भुत है, न राग न वैराग्य। और भगवान कहते बहो ज्ञान तपसा, जिनकी तपश्चर्या का आधार ज्ञान है। कई लोग कहते हैं तपश्चर्या, लेकिन उनकी तपश्चर्या का आधार अहंकार होता है। बहुत तपश्चर्या करते हैं लेकिन लोग प्रशंसा करने आते हैं। कई लोग देखो तुम्हारे महाराज ने कितना उपवास किया, वो कहते हैं हमारे महाराज ने 21 दिन का, तुम्हारे महाराज ने कितना 10 दिन का, नहीं हमारे महाराज ज्यादा है। क्यों? जस्ट 21 दिन का उपवास किया इसलिए ज्यादा है। इट इज द सेम थिंग है, वो कोड़ा मारने की बात है ना। 100 कोड़ा जो खाता है उससे कोई 150 कोड़ा खाएगा तो इज अ ग्रेटर सेंट। उपवास करना भी वो अंदर से कोड़ा मारने की बात है। इट इज एन इंटरनल टॉर्चर। इफ यू आर hitting somebody with a stick, it is an external violence. If you are not eating, it is an internal violence. अंदर से वायलेंस हो रही है। वो तो कोई ज़्यादा उपवास करता है तो अपने आप को ज़्यादा वायलेंट, अपने आप को इज वायलेंट अपॉन हिज ओन सेल्फ। भगवान कहते हैं इसमें मत पड़ो। वितरागता इज टू, ये ज्ञान तपश्चर्या नहीं है, ये अहंकार से ऊपर जन्मी हुई तपश्चर्या। और नीचे कोई ऐसे एक पाँव पे खड़ा है, आप प्रशंसा करें तो उसका अहंकार और बढ़ने लगेगा। वो उसने अगर पहले अनाउंस किया होगा 30 दिन के लिए करूँगा, फिर वो 2 महीना करेगा, क्योंकि लोग आके उसकी पूजा करते। लेकिन हर रोज लोग आके उसको कहे कि पागल हो गया क्या, भगवान ने 2 पाँव दिया है किस लिए, 2 पाँव के पे खड़े कर दे, तो 1 पाँव पे क्यों खड़ा है? आर यू स्टूपिड और व्हाट? आर यू ट्राइंग टू शो ऑफ? वो दूसरे दिन चला जाएगा, क्योंकि अहंकार को पुष्टि नहीं मिलती। कई लोग हैं अहंकार के ऊपर उनकी तपश्चर्या बनी रहती है। सच्चा योगी जो है ऐसी तपश्चर्या नहीं करता है, इज नॉट टॉर्चरिंग हिमसेल्फ, लेकिन तपश्चर्या उनसे अपने आप हो जाती है, ये अलग बात है। कोई योगी अगर ध्यान में बैठा है और इतना अंदर चला गया है, 6 दिन तक वो बाहर नहीं निकलता है, तो 6 दिन का उपवास भी हो जाता है, कुछ खाता नहीं है, कुछ पीता नहीं है, तो हम कहेंगे इतनी, लेकिन वो तपश्चर्या करता नहीं है, अपने आप हो जाती है, क्योंकि उसकी तपश्चर्या का आधार क्या है? ज्ञान है। ज्ञान तपस्या, और ज्ञान तपस्या है जो तपश्चर्या शरणागति से उत्पन्न होती है, जो तपश्चर्या समर्पितता से उत्पन्न होती है, उसका नाम है ज्ञान तपस्या। कई बार रामकृष्ण परमहंस समाधि में चले जाते थे 3 दिन तक, एंड पीपल विल थिंक ही इज गॉन, ही इज डेड, because his breathing will be like, his heartbeat will be so slow, so insignificant, people will think he is never going to come out, and he comes out after 3 days or 6 days, and people say आपने कुछ खाया नहीं? I don't even know that I have not eaten. तो ये जो तपस्या है ज्ञान पे आधारित है। इसमें उन्होंने ऐसा किया, ऐसा नहीं, ये हो गई, it happened like this,
And he said, what's the time? He said, 6 दिन हो गए. He said, I thought I just went into this coma a minute ago. For him, he went into a state of timelessness. समाधि में जब इंसान जाता है तो समय से पार चला जाता है. तो although the mechanical clock has run for 6 days, for him, nothing has gone. It is just the next moment. तो ये तपस्या जो है, जब तपस्या का आधार शरणागति है, जब तपस्या का आधार समर्पितता है, तभी उसको हम कहते हैं ज्ञान तपसा. बहवो ज्ञान तपसा. ये समझने जैसी बात. एंड मेनी पीपल हैव मिसअंडरस्टूड. कई लोग कहते हैं कि व्हेन यू टॉर्चर योरसेल्फ यू विल राइज स्पिरिचुअली अपवर्ड्स. नॉट अकॉर्डिंग टू कृष्ण. ये सब समाज में हमने द सो कॉल्ड गुरुज, the so-called sadhus, the so-called saints have given us wrong impressions in our mind. You know, I admire Gandhi ji a lot, but many things like, you know, वो अपने स्वाद जो है, अपने जीभ, उसको स्वाद को मारने का प्रयास करते थे. खाने से पहले वो करेले का पेस्ट खाते थे. Pure karela is so bitter. Then your taste is killed. Then whatever you eat, you cannot even taste it. So then you don't get attached to the taste. But see, Mira is ahead of Mahatma Gandhi. Mira says, whatever you give me, I will eat. And I will enjoy it. Whatever you give, I will enjoy. But Mahatma Gandhi tried to suppress his taste by first eating karela. Raw karela or karela paste. Louis Fisher, one of, you know, he admired Gandhi. He came to see Gandhi. So Gandhi invited him for lunch. And they were sitting together. So everybody was given this karela paste. So Gandhi said, give him also. And Louis Fisher was told by some people in advance, okay, this is very bitter. And be prepared for it. So Louis Fisher said, well, before enjoying other food, let me just quickly finish this so that I don't eat. So he just swallowed it at one go and just quickly drank wine. It was like so bitter. It's like poison. He cannot tolerate. So Gandhi ji said, oh, he likes it, give him more. और लाइए, उसको बहुत अच्छा लगता है. आस्वाद में जाते थे गांधी, लेकिन ये जरूरी नहीं. अन्नम ब्रह्म. If you are drinking orange juice, think that God has made such a nice thing for you. This taste of Brahma is a different dimension of Brahma. This orange flavor, this pineapple flavor is a different dimension of Brahma. If you are eating a pakoda, I think this is a different dimension of Brahma. Annam Brahma, Annam Brahma. भगवान ब्रह्म में भी है, चारों ओर व्याप्त है तो अन्न में भी व्याप्त है. सो अन्न का अनादर नहीं करना. अन्न नो अनादर नहीं करो. Don't hate it. Accept it. And through acceptance, try to reach him. भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण किया है कि I am so obliged to him that he has created such nice things for me. So our Upanishads, Rishi said, Annam Brahma, Raso Vaisa. सारी पृथ्वी रस से भरपूर है. भगवान ने इतना वैविध्य बनाया है. उस वैविध्य आपको भगवान ने दिया है तो then enjoy it. You don't have to run away from it. But if that enjoyment is not there one day for you, don't be so miserable also. Because you are in your vitrakta. Na sukh, na dukh, na hani, na love. So jnana tapasa is a very different dimension. That tapasya, that austerity, that penance which is based on the real knowledge of the self, which is based on bliss, अपने अंतर के आनंद पे आधारित जो तपस्या है उसका नाम ज्ञान तपस्या. सो महावीर के उपवास हो गए, उनको पता भी नहीं चला. रामकृष्ण परमहंस के उपवास हो गए, उनको पता भी नहीं चला. जैसे कोई वैज्ञानिक जब अपने प्रयोगशाला में होता है वो खाना भूल जाता है. There are many scientists, they forget about their lunch because they are so much and they enjoy what they are doing. Many a times Sarda Devi will come at the door of the temple and tell Ramakrishna that food is ready, come over. And he is so engrossed into, he is so much into his, he cannot even hear his wife. She comes again, and there were many days he did not even come out of the temple. And then he was so honest to himself, someday he did not even enter temple. People will ask, what kind of pujari are you?
टुडे यू नॉट एंटर्ड द टेम्पल? ही सेड, आज मेरे दिल में कोई भाव नहीं होता है तो मैं नहीं जाता हूँ. आई एम नॉट अ चीटर. ओनली व्हेन देयर इज रियल भाव, जब हृदय में इतना प्यार आता है तभी मैं भगवान के सामने जाता हूँ, तब तक नहीं जाता हूँ. आज नहीं है प्यार तो नहीं जाता हूँ. जिस दिन प्यार आएगा उस दिन. और जब होता था तो 6 दिन तक बाहर नहीं आते थे. दिस पीपल आर डिफिकल्ट, क्योंकि वो वितरागता में, उनकी तपश्चर्या ज्ञान पे आधारित है, अहंकार पे आधारित नहीं है. कई लोगों की तपश्चर्या आमतौर पर 99.9% तपश्चर्या, the so-called external show-off is based on pride and ego. There are very few yogis, they don't show off anything. They quietly come and quietly go. And that is a true yogi. There are many try to be, they dress up as a sannyasi or a sadhu, dress up as this, dress up as this. Shankaracharya says, Jatilo mundita lunchita kesa udara nimittam bahutu kritavesa. There are people who, grow their hair longer. There are people who shave their scalp totally. They are totally bald. There are people, they wear this kind of clothes. These are all the ways to cheat your own self. These are all the ways to, earn livelihood through some other easier means. Shankaracharya says this. But there are some people who have become sadhu, but they have become sadhu on their own with their inner consciousness. Then their tapasya is based on real knowledge, real place. भगवान की समर्पितता से. तो ये ज्ञान तपसा, बहवो ज्ञान तपसा, जिसका अहंकार मर गया है, जो भगवान के साथ जुड़ जाए, उनको पता भी नहीं चलता है क्या हुआ. चलो जो हो गया हो गया. आज खाया भी नहीं, मैं भूल गया खाने के लिए. तो उसका उपवास हो गया तो हम कहते हैं तपस्या, लेकिन उसने तपस्या की नहीं है, तपस्या हो गई है. इट हैपेंड इन इट्स ओन वे. जो कहता है मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ, आई एम ऑब्जर्विंग चेस्टिटी और आई एम ऑब्जर्विंग सेलिबसी. अगर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है तो आप ब्रह्मचर्य में नहीं हो. इफ यू हैव टू ऑब्जर्व एंड मेंटेन सेलिबसी, then you are not in celibacy because you are forcing yourself. Then your mind is definitely in sex. Again, we have a beautiful word, brahmacharya. Brahmacharya and brahmacharya. One who is into godliness, when he is in godliness, he is so much into the ultimate bliss. He will never have to think about a temporary joy or temporary happiness of sex. See, this is the difference. Brahmacharya does not mean abstaining from sex. Brahmacharya means you are into him. You are into a higher stage. Once you have diamonds in your hand, you will not care for nice, colorful stones which are lying on the street. Once you know the permanent bliss, you will not fall for a temporary pleasure, sensual pleasure like sex or eating or whatever. But this is a very different thing. बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभावा, वो मेरे शरीर को प्राप्त हो गए. When we meet next time, I'll explain. मेरे शरीर को प्राप्त हो. They acquire my body or they acquire my स्वरूप. मेरे स्वरूप पूता मदभावम आगता. What does it really mean? वो मेरे स्वरूप को कैसे पा जाते हैं, उनका स्वरूप कैसा है, उसको किस तरह पा सकते हैं, उसके बाद हम अगले मंगलवार को बात करेंगे. I hope I did not offend you very much. But whatever Krishna says, I'm trying to explain in a very objective way.